Welcome. Namaste. In this evening, we have Dr. Aditya Sugla. He is Associate Professor of Media Studies at Manipur University, Jaipur. He is a researcher. He is a writer. He is also a fact and fit trainer and a responsible husband, a determined father, and an educated citizen of India. By saying so, I welcome Dr. Aditya Sugla for this program. Thank Dr. you. Aditya Sugla, namaste and welcome. Namaste. Namaste. How are you, Dr. Sugla? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you so much. Today we are celebrating birthday of our guru, Dr. Nirmal Mani Adhikari, and we have conducted different types of program this day. By this day, there are so many people directly, indirectly connecting with Root and Locus movement in Nepal. And Root and Locus movement is growing rapidly, not only within Nepal, but outside its boundaries as well. So there are so many people overseas where Nepalese citizens are working at this moment. They are taking this movement as their own. And Dr. Nirmal Mani Adhikari insists us and he encourages us to be powerful, to be enlightened, and to educate by ourselves all the materials and all those paraphernalia, what he had provided for us. That is, I think, more than enough for a person to be enlightened and a person to get encouraged to participate for the nation building projects. So let's go back to the topic tonight. The topic tonight for Dr. Aditya Sugla, I would like to elaborate a little bit more about Dr. Nirmal Mani Adhikari and his communication model and its impact on Bharatvarshiya Sanchar Siddhant. So this is the topic tonight, and there is no time limit for you. That's all from my side. So I will ask you to lead from here. Thank you. Thank you, Rajan. Thank you very much. And it's my pleasure to be here because speaking on someone with whom I am connected from last 12 years, it is a very difficult thing for me when I start using theories. So I will try to put my words in Hindi because it will be more impactful rather than in English, because we are talking about Bharatvarshi Sanchar Siddhant. So Hindi and other languages are more impactful. So अगर हम भारतवर्षीय संचार सिद्धांतों की बात करें तो पहले थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मैं निर्मल जी से कैसे जुड़ा, निर्मल गुरु जी से कैसे जुड़ा. ही इज माय गुरु आल्सो बिकॉज उन्होंने मुझे पीएचडी गाइड की है और वो मेरे जो हमारा शोध है योगा फिलॉसफी और कम्युनिकेशन पे, उसमें मेरे गाइड रहे हैं. मैंने कंप्लीटेड, जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो मेरे अंदर था कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यू मीडिया और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करूं. बट एक दिन ऐसा आया 2012 में, एक कॉन्फ्रेंस था भोपाल में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड निर्मल मनी अधिकारी सर वाज द कीनोट स्पीकर देयर एंड हम लोग मिले. सो हम लोगों ने जब डिस्कस किया, ही टोल्ड मी दैट व्हाई यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग इंडियन फिलॉसफीज. So that thought clicked in my mind. मेरे दिमाग में वो बात चली. बट वही हुआ कि मैं एक सिंपल कम्युनिकेशन का स्कॉलर, बीएससी मेरा फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो मैं फिलॉसफी कभी नहीं पढ़ा. बट मैं फिलॉसफी में कैसे घुसूं, हु विल गाइड मी? तो ही सेड आई विल गाइड यू. तो मैंने कहा यहाँ थोड़े से नॉर्म्स दूसरे होते हैं, तो बोले एनी हाउ आई विल गाइड यू, यू कैन प्रोसीड, यू कैन एक्सप्लोर योगा फिलॉसफी फर्स्ट. बिकॉज हमारे जो षड दर्शनाज हैं उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई संचार सिद्धांत है. और जब हम ये कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ सोसाइटी, तो एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज देयर. So in every evolvement of the society, in every development of the society, everywhere communication is there. Yes. So and जब बार बार ये बात कही जाती है कि कोस कोस पर बदलत पानी, चार कोस पर बानी, तो जब कोस कोस पे पानी बदल जाता है, चार कोस पे पानी बदल जाता है, तो संचार भी बदलता होगा. तो इसलिए हर जगह के लिए थोड़ा सा दूसरे तरह के संचार सिद्धांत होने चाहिए. तो मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया अंडर हिज गाइडेंस.
और मैं किसी तरह अपना योगा फिलॉसफी पे शोध पूरा कर पाया। 2020 में मुझे थीसिस अवार्ड हुआ और मेरा पीएचडी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और पूरे ऐसा मैंने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में वो इकलौता थीसिस योगा फिलॉसफी और कम्युनिकेशन की बात करता है। ऐसे ही निर्मल सर की अगर जब बात करें तो उनके जो संचार सिद्धांत हैं, तो जो पहला संचार सिद्धांत उन्होंने दिया जिसका नाम है साधारणीकरण संचार प्रारूप, साधारणीकरण संचार सिद्धांत। हम अगर केवल भारतवर्ष की सब कॉन्टिनेंट को देखें, जिसको हम भारतवर्ष बोलते हैं, मिला जुला के सब उसके पार्ट माने जाते हैं, तो भारतवर्ष को अगर हम देखें तो वहाँ बहुत सारी फिलॉसफी इवॉल्व हुई है। बुद्धिस्ट है, जैन है, किरात है, बहुत सारे लोग हैं जो इवॉल्व हुए हैं। और इंडिया में भी बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं। षड दर्शन आज हैं, बहुत सारे दर्शन है हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास ब्राह्मण है, हमारे पास अरण्यक है, सब कुछ है हमारे पास। तो इतना सब होने के बावजूद हमने ये पाया कि हमारे संचार सिद्धांतों में एक्सप्लोरेशन नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने छिटपुट थोड़ा थोड़ा काम किया है और उसके बाद उसको बंद कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। जैसे कुछ एक एविडेंसेस मिलते हैं 90s में, जब जेएस यादव और आईपी तिवारी ने साधारणीकरण पे बात की है, बट वो साधारणीकरण के बात को कहीं खत्म करके उसके बाद उसको भूल जाते हैं, उसके आगे की बात नहीं करते। उसको जो बीड़ा उठाया उसमें डिटेल स्टडी नहीं हुआ था। हाँ, डिटेल्ड स्टडी नहीं हुआ, उसको स्टॉप कर दिया, उसको बता दिया कि हाँ कुछ ऐसा है। हाँ, जबकि वो रस सिद्धांत में आता है, संचार साधारणीकरण रस सिद्धांत से आता है, थ्योरी ऑफ रसा में आता है, बट उसमें संस्कृत में मिलता है, उसमें बहुत कुछ मिलता है, बट उसको कम्युनिकेशन से कैसे जोड़ें, उसको मॉडल कैसे बनाए, उसका प्रारूप कैसे डेवलप हो, इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। तो ये बीड़ा उठाया निर्मल मणि अधिकारी सर ने, और अपनी इंग्लिश एमफिल के दौरान he was doing his English MPhil and that time he explored the साधारणीकरण संचार सिद्धांत। So वहां से ये स्टार्ट होता है। और अभी जो अगर केवल संचार साधारणीकरण सिद्धांत पे बात करूं तो लगभग मुझे लग रहा है 15 से 16 कंट्रीज में उस पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है कि वो है क्या, और कई भाषाओं में वो पब्लिश भी हो चुका है। आई एम कंटिन्यूअसली गेटिंग द इंफॉर्मेशन, निर्मल सर भी बताते रहते हैं मुझे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषा में उस पर बात हो रही है। उसके बाद अगेन ही टेक्ड अप वन मोर टॉपिक, कुमारिल भट्ट पे उन्होंने काम किया है, मीमांसा दर्शन पे उन्होंने बात की, और वहां उन्होंने भावना सिद्धांत को संचार से जोड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने खुद और अपने लेवल पे एक्सप्लोर की। इन दैट ट्रेडिशन मुझे भी ऐसा मौका मिला कि मुझे एगो फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया। बट अगर हम केवल संचार केवल भारतवर्षीय संचार सिद्धांतों और भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हम फॉरेन ऑथर्स ने, हम अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दें तो फॉरेन ऑथर्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत कुछ काम कर रहे थे। जैसे मुझे W.G. क्रिकवुड है, उनके बहुत सारे पेपर्स मिले जिन्होंने पंचतंत्र पे लिखा हुआ है, पंचतंत्र और कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन इथिक्स को जोड़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने शिव तांडव पे काम किया है। गुणारत्ने है, उन्होंने वेदांत दर्शन पे काम किया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे दिशा नायक है, उनका बुद्धिस्ट थ्योरीज पे बहुत अच्छा काम है, बुद्धिस्ट थ्योरीज को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बट विडंबना ये रही कि भारतवर्ष के जो षड दर्शनाज हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिलता रहा जब हम संचार की बात करते हैं। एक दो लोग और हैं, जैसे सीताराम है, KS सीताराम, उन्होंने भी बात की है कई बार भारतवर्षीय संचार सिद्धांतों पे। बट जिस तरह का एक्सप्लोरेशन निर्मल मणि अधिकारी जी ने किया, उस तरह का एक्सप्लोरेशन किसी भी उसमें नहीं मिलता, किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलता। तो उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आज अभी मुझसे बात होती रहती है कई सारे स्कॉलर्स की। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में एक PhD थीसिस चल रही है जिसमें वो उपनिषद को लेके काम कर रहे हैं। ही इज कंटिन्यूअसली इन माय टच टू, और वो मुझसे बात करते रहते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं बात करता हूँ, अभी लोग उस तरफ डेविएट हो रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो नॉर्मली रहा है कि हम मतलब भारतवर्षीय संचार से, भारतवर्ष की किसी भी चीज को लेके बात करें, हमें भेड़ चाल में चलने की आदत है। हम भेड़ हैं, हमें जिस तरफ ले जाएंगे लोग हम उस तरफ भागते रहेंगे। ठीक है, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति को लेके हो, ठीक है, हमारे पहनावे को लेके हो, हमारे रहन सहन को लेके हो, हमारे खान पान के लोग लेके हो, हर तरफ हम भागते रहे। वही हाल हुआ हमारे लिटरेचर के साथ भी, हमारे एक्सप्लोरेशन के साथ भी। हम अपनी चीजों को भूल के और ऐसी चीजों की तरफ भाग रहे हैं जहां हमारा कुछ नहीं है। असल बात यह है।
और पूरा अगर कम्युनिकेशन को ही देखें तो कम्युनिकेशन के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे डेवलप हुए यूएस में और यूरोप में। हमने क्या किया, वहां से उठाया, एडिटेड अपने लोगों को परोस दिया। जबकि जब हम कल्चरल डेविएशन की बात करते हैं कम्युनिकेशन में कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और बेरलो ने इस बात को बहुत पहले कहा, डेविड बेरलो ने इस बात को बहुत पहले कहा कि कल्चरल इम्पैक्ट होता है। बट हुआ अल्टीमेटली क्या कि हम सारा यूरोपियन कल्चर और यूएस कल्चर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे एडवांस थे, सारे जितने भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनके यहाँ पहले डेवलप हुए थे, तो हमें लगा कि हम उसको ले आए और हम उसको आज तक ढो रहे हैं। अल्टीमेटली आज तक हम उसको ढो रहे हैं। वो क्या रहा है कि भारतवर्ष में जो मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इन सब में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें कुछ भी हमारा ओरिजिनल नहीं है। हमने कुछ अपना ओरिजिनल गढ़ा ही नहीं, वो सब हमने उठाया हुआ है, सब हमने बाहर से लेके आया हुआ है। और उसका डोमिनेंस ये है कि हम अपनी चीजों को आज भी एक्सप्लोर करने से कतराते हैं। अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले रिएक्शन आता है कि तुम कैसे कर सकते हो, ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको कैसे करोगे। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लोर इट, फर्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप। और इस चीज को एक तरह से जागृत किया निर्मल जी ने। वो जब भी अपनी टॉक्स में, मैं 3-4 बार उनकी टॉक्स में बैठा हूँ साथ में, एक बार तो मैं साथ में ही था, तो जब भी वो अपनी टॉक्स में बात करते हैं वो कहते हैं कि आप बढ़िए आगे और मैं आपके साथ हूँ। इस तरह का कोई भी एक्सप्लोरेशन है उसमें मैं आपके साथ हूँ। और आज स्थिति ये है कि भारत में कम से कम 4-5 जगह ऐसी थीसिस चल रही है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस एक्सप्लोरेशन कर रही है। अच्छा। जिन पे कहीं ना कहीं इस साधारणीकृत संचार सिद्धांत का प्रभाव है, जिन पे कहीं ना कहीं, जहां से मैंने पीएचडी की है वहां भी एक चल रहा है अभी थीसिस, जिसमें वो टोटली सारे चीजों को लेके काम कर रहे हैं कि भारतवर्ष में किस किस तरह के संचार प्रारूप संभावना है, रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, और इसका सीधा श्रेय जो है वो जाता है डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी जी को। क्योंकि अगर वो चैनलाइज नहीं करते चीजों को, वो हम लोगों को बताते नहीं कि कैसे चलना है, कैसे इस चीज को एक्सप्लोर करना है, तो शायद हम वहीं अटके होते और हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे होते। हाँ जी, अगर मैं एक प्रश्न आपको थोड़ा पूछता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपने जो कहा, जिस तरह से आपने बातें कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ये कम्युनिकेशन में सबसे पहले और पहले से ही, बहुत पहले से ही इसका इम्पैक्ट था। इसलिए उसका जो मौलिक हाँ जी जो है, हाँ जी, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं सिंपली, तो कम्युनिकेशन इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। ओके, सो जितना ग्लोबलाइजेशन पैदा हुआ वो टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हुआ, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कम्युनिकेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद आया। सो जो एक्चुअल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, तो कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और यही रहा कि हम not only India, if we talk about the Middle East countries, if we talk about the African countries, everywhere, वही यूएस और यूरोप के ढोए हुए सिद्धांतों को हम ढोते रहे और उन्हीं पे काम करते रहे, उन्हीं पे बात करते रहे। उसका प्रभाव ये है कि आज हमारा मीडिया कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास मीडिया में वो स्थिति है कि आप भारतीय मीडिया या कहीं का भी मीडिया की बात करें, वो स्थिति है कि आप देखना नहीं चाहते उन चीजों को। अगर हमने अपने हिसाब से उन मॉडल्स को गढ़ा होता और अपने हिसाब से उन चीजों को प्रेजेंटेशन दिया होता, तो शायद जो स्थिति आज है वो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमने वो चीजें दी नहीं। हमारे भारत को या हमारे भारतवर्ष सब कॉन्टिनेंट को जिन चीजों की आवश्यकता थी, वो चीजें हमारे मीडिया के लिए बनाई नहीं गई, ना वो कम्युनिकेशन मॉडल्स डेवलप किए गए। तो स्थिति वही हुई कि ढक के 3 बात और घुमा फिरा के हम वही सब अभी भी परोस रहे हैं। अभी भी स्थिति ये है कि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो भारतवर्ष में, आपने जैसे बताया कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में अभी मॉडल इंक्लूड किया गया है। मैंने ये कोशिश की, मैं जहां भी रहा मैंने सिलेबस जब भी चेंज किया तो बहुत साधारणीकरण जरूर डाला कि बच्चे उसको पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये मेरा है। क्यों डाला? इसलिए क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं अपनी चीजों को तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमने उसको डाला, और भारत के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ साधारणीकरण संचार प्रारूप पढ़ाया जाता है। 1-2 में भट्ट मीमांसा भी आ चुका है, क्योंकि भट्ट मीमांसा अभी प्रॉपरली टेबल पे नहीं है, नहीं तो 1-2 जगह भट्ट मीमांसा के बारे में भी बात होने लगी है। ठीक है, तो ये सारा जितना भी श्रेय है जो बदलाव का, वो जाता है निर्मल जी को। हालांकि आप अगर देखें, क्योंकि आप केवल मीडिया एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है,
ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। और इंडिया में हुआ क्या कि ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट की बात करूं मैं, तो वहां क्या हुआ कि हम मीडिया को एज अ सेपरेट डोमेन पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मीडिया इज नॉट अ सेपरेट डोमेन, इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जिसने साइकोलॉजी से बोरो कर रखा है, जिसने सोशियोलॉजी से बोरो कर रखा है, ठीक है, जिसने डिफरेंट और चीजें हैं, इकोनॉमिक्स से बोरो कर रखा है, पॉलिटिक्स से बोरो कर रखा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, और जितने मॉडल्स भी हैं वो भी दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं। बट हमारे इंडिया में हमने क्या किया कि हमने इन सब्जेक्ट से नाता तोड़ लिया। हम इंडिया की बात करें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, हर जगह नाता टूट गया और हम इसको सेपरेट एंटिटी मान के बैठ गए कि सेपरेट एंटिटी है, इससे दूर है। और या हमें कोई डर था कि ये लोग आएंगे हमारे सब्जेक्ट को इंक्रोच कर लेंगे, ऐसा भी डर था। बट अभी क्या है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग फिलॉसफी और कम्युनिकेशन की बात करना स्टार्ट किए हैं, लोग साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो बहुत तेजी से बदल रही हैं, और उसमें अब इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज की बात भी होने लगी है कि इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज में क्या क्या आ सकता है। और वो सारा श्रेय जाता है हमारे निर्मल जी को, क्योंकि अगर वो ये गाइडलाइंस सही में क्रिएट नहीं करते तो शायद ही उन सब पे बात होना शुरू होती। इंडिया में बहुत बात हो रही थी, लोग कर भी रहे थे। नारद को पत्रकार कहना, नारद जी को, हनुमान जी को प्रथम पत्रकार कहना, बहुत सारी चीजें इंडिया में पहले से चल रही थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सब चीजों पे बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोरेशन कर रखा था, बट उस पे इफेक्टिव बातें नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास कुछ वेल डेवलप्ड नहीं था। ठीक है, वेल डेवलप्ड जब चीजें होती हैं तब हम लोगों को प्रेजेंट कर पाते हैं। हुआ ये, जब निर्मल जी का मॉडल इंसाइक्लोपीडिया में छपा कम्युनिकेशन थ्योरीज की, हिंदुइज्म के नाम से, इट इज अ हिंदुइज्म, मॉडल ऑफ हिंदुइज्म, तब उसके बाद लोगों को लगा है कुछ हो सकता है। नाउ इट इज इन द इंसाइक्लोपीडिया, साधारणीकरण सहायता, इट इज देयर, नाउ इट हैज स्टार्टेड। सो सीधा अगर कहा जाए तो अगर वो सब चीजें नहीं होती तो शायद हम जो स्थिति आज है, स्टिल वी आर इन इंफेंसी स्टेज, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर टू एक्सप्लोर, लॉट ऑफ थिंग्स धीरे धीरे हो रहा है, बट होगा, और ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लोग मुझे से कई बार पूछते हैं कि अगर किसी दूसरे फिलॉसफी को एक्सप्लोर करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये सब किया जा सकता है, पहले मन बनाओ, मन बनाना है। अगर मन नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे ही मेरी थीसिस करने में लगभग 6 साल लगे, तो क्योंकि मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं रहा, मैं फिलॉसफी का स्कॉलर नहीं रहा, तो उसके लिए एक्सप्लोर करने में मुझे टाइम लगा। तो जो लोग स्कॉलर्स हैं वो लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं कम्युनिकेशन से, थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को बढ़ावा देना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम चीजों को बदल पाएंगे, और हम एक ऐसे प्रारूप को डेवलप करेंगे। कई बार हम मास्टर्स इन इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज भी कभी एक कोर्स चला करेगा, हम ऐसा प्लान रखते हैं दिमाग में कि मेरा निर्मल सर जी से कई बार बात होता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई मास्टर्स इन इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरी चल रहा हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज, मास्टर्स इन इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड फिलोसफी, इस तरह का कुछ हम मास्टर्स लेवल के कोर्सेज डेवलप कर पाए। वो होगा, भविष्य में होगा, क्योंकि जिस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं उन चीजों को, वो सच में होगा। और सारा श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा निर्मल जी को, क्योंकि जो बेस होता है सारा श्रेय उसी को जाता है। नींव का जो पत्थर होता है, पूरा नींव उसी पे टिका होता है, वो नींव के पत्थर है। नहीं, ठीक है, मेरा तो मानना है कि ये कंसेप्ट जो आपके मन में आया ना, तो कंसेप्ट का भी कहीं से स्रोत है इसका, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम समवेयर। तो हमको पता नहीं कहां से है, लेकिन आपके कंसेप्ट में आया कि ऐसा हो सकता है। सो इट विल बी, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पीछे आप और मैं और हमारे जैसे आम आदमी के पीछे गुरु है निर्मल मणि अधिकारी, तो हो ही जाएगा। जी और तो यही हुआ कि जब साधारणीकरण आ गया 2008 में, उसका संचार का रेखीय प्रारूप आया, तो जब मॉडल की तरह आ गया तो लोगों को लगा यार कुछ हो सकता है, यस हाँ, कुछ इस तरह के मॉडल्स भी डेवलप किए जा सकते हैं इंडियन थ्योरीज को लेके। तो अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, और आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क। मेरी कई बार बात हुई है, हालांकि इस तरह के पटल पे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे अक्सर पूछता था कि आप इतना काम करते कैसे हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ, I have talked lot of time कि आप इतना काम कैसे करते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं मैं सोता नहीं हूँ। मैंने कहा कितने घंटे सोते हैं आप? बोलते 3 घंटे। हाउ यू कैन डू इट?
तो वो कहते हैं नहीं, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ 1 घंटे, तो मेरी 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। सो द एफिकेसी बाय विच ही इज वर्किंग, अ नॉर्मल पर्सन कांट डू दैट। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल। वो है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, वो स्पीड एक नॉर्मल पर्सन की स्पीड नहीं हो सकती, ये क्लियर है। ओके। और वो सारी चीजों को साधते हुए अभी अगर आप नेपाल की बात करूं तो 12 से 15 संस्थाएं खड़ी करके, इस्टेब्लिश करके लोगों को सौंप चुके हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लोगों को दे चुके हैं, लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं और वो बैकग्राउंड में जा चुके हैं। हाँ जी, बट वही है कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं, इट इज वेरी टफ टास्क। हाँ जी, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल मानवीय जीवन का इंसान वो नहीं कर सकता, उसको बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड जितना मुझे पता है, वो अपने सारी चीजों को साधते हुए सारा काम करते हैं। जैसे भी कर रहे हैं, हर चीज उनकी सदी हुई है, हर जगह टाइम देते हैं। ये भी नहीं कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो फैमिली के साथ भी हैं, वो अपने लोगों के साथ भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ही इज अल्टीमेट पर्सन। और ये मैं कई बार उनसे बात करते करते मुझे लगा कि वो कहते हैं हो सकता है तुम भी बन सकते हो वैसे, बट मैं नहीं बन सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा इस जन्म में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बट उनको देख के लगता है कि हाँ, कुछ किया जा सकता है, कुछ चीजें हैं जिनको साधा जा सकता है, कुछ चीजें हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो मुझे मौका देते हैं। अभी हम लोग कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं साथ मिलकर, तो प्रॉब्ली वो भी जल्दी आएंगे। प्रॉब्ली दिस ईयर एंड हम कुछ दे पाएंगे इसी भारतवर्षीय संचार सिद्धांतों को लेके, एक प्रॉपर थिंग जिसमें सब एक साथ होगा। पहली बार ऐसा हम लोग कुछ प्लान किए हैं, देखते हैं वो कब सक्सेस होता है। बट हमें लगता है कि वो सक्सेस होगा, क्योंकि जिस तरह का उनका करने का तरीका है, काम करने का, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो मुझे लगता है वी विल सक्सीड इन दैट टू। एंड आई होप दैट ही कंटिन्यू गाइडिंग अस फॉर लॉन्ग। एंड क्योंकि जरूरत है, हमें सच में जरूरत है किसी की जो हमको इन चीजों के लिए गाइड कर सके, जो हम लोगों को बता सके कि हाँ, ये इसको कैसे किया जा सकता है। और ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर दैट, और वो उसको कर भी रहे, बाखूबी कर रहे हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। कम्युनिकेशन में जितना इम्पैक्ट उनकी जो दर्शन, उनके जो सिद्धांतों ने किया है इम्पैक्ट, उसी तरह एक आदमी जब इतनी छोटी एक्टिव लाइफ की इतनी छोटी टाइम पे 2600 आर्टिकल्स और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो मैं ऐसा सब्जेक्ट सोचता हूँ तो उसमें पहले ही उन्होंने कुछ किया गया है। 2600 आर्टिकल्स एंड जर्नल्स एंड आप नाम ले सकते हैं, वो सब उन्होंने किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मेरा तो अराउंड 3 years हो गया उनके साथ। तो ऐसा लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज से 10 साल पहले उनसे मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन मैं इसमें सौभाग्य मानता हूं कि मैं काठमांडू में हूं और उनके साथ हर दिन मैं किसी ना किसी तरह से इन कांटेक्ट हूं। तो जो आप बात कर रहे थे कि हाउ ही कैन अकम्प्लिश ऑल दैट, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सब एक जगह वही 24 घंटे में, जो हमारे पास भी 24 घंटे है। हाउ कैन ही मैनेज दैट? सो इस हिसाब से ही इज अ वेरी स्किल एंड समथिंग ह्यूमन बीइंग के जो स्ट्रक्चर पे एक समथिंग स्पेशल पर्सन है, जो हमारे जैसे चेहरे दिखाई देता है, हमारे जैसे ही बैठ के खाते हैं और हमारे जैसे ही बातें करते हैं, लेकिन ही इज नॉट लाइक नॉर्मल पर्सन लाइक अस। वो मेरा मानना है। तो वो आज आपने वो आपका मानना नहीं है, वो हम जैसे कई लोगों का मानना है। तो आपने प्रूव कर दिया, ये सच सोचता हूं। क्योंकि जब मैं मिला था दैट टाइम ही वाज 35 और 36 10 years बैक। तब उनके क्रेडिट में 40 किताबें थी, 60 से ज्यादा आर्टिकल थे, 20 के आसपास प्रोजेक्ट थे जो मीडिया के वो कर चुके थे, यूनिसेफ और यूनेस्को और सबके साथ लेके। दैट टाइम वी गॉट शॉक्ड कि how a person can do this at this early stage of 35 years. So वो अल्टीमेट है, और वो आपका ही मानना नहीं है, हम जैसे कई लोगों का वो मानना है। मैं जो हमारे गाइड हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया उस थीसिस में, सर को गाइड थे, क्योंकि यहाँ जो रेगुलेशंस है उनके हिसाब से वो को गाइड ही रह सकते थे। तो वो भी ये मानते हैं कि वो अल्टीमेट है, वो कुछ अलग तरह से करते हैं, और उनके पास है कुछ जो वो इतना सब कर पा रहे हैं। नहीं तो सच में ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लेवल का नहीं है, क्योंकि अभी तो 60 किताबें हैं उनके क्रेडिट में, 80-90 आर्टिकल्स हैं जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं।
और बाकी वो कंटिन्यूअस लिखते रहते ही हैं। आजकल तो मैं देखता रहता हूँ, आजकल उनका कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यू लिख रहे हैं। कुछ आता रहता है, पाइपलाइन कैसे आता रहता है। नॉर्मली एक इंसान को आर्टिकल लिखने में, एक नॉर्मल आर्टिकल मैं ही लिखने बैठता हूँ तो मुझे 2 घंटे लगता है, 2 से 3 घंटे। एंड ही इज कंटिन्यूअसली पब्लिशिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स एवरी डे। सो कुछ तो है जो अलग है, और वही उनको सबसे अलग बना रहा है, इसलिए वो हम सबके गुरु हैं, इसलिए वो हम सबको दिशा दिखा रहे हैं और हमें लेकर चल रहे हैं साथ में, जी क्योंकि वो अलग है। हाँ जी। तो डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी अभी इस सोसाइटी में बहुत सारे, नेपाल में भी लाखों लोग मानते हैं कि ही इज अ रियल गुरु, ही कैन गाइड दिस सोसाइटी टू अ राइट डायरेक्शन। तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू से वर्ल्ड को एक गाइड कर सकते हैं, और फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड को यूनिफिकेशन करने के लिए ये कम्युनिकेशन सिद्धांत जो है एक, उसके लिए एक नजीर बन सकता है। तो आप उसमें काम कर रहे हैं, आप मानते हैं, वो भी डॉक्टर निर्मल अधिकारी आपका भी गुरु है। तो मैं भी उनके इनिशिएटेड शिष्य हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ उन पर। बस यही है कि उनकी वजह, अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो मैं उनसे जुड़ता नहीं, और उनसे नहीं जुड़ता तो आपसे मुलाकात नहीं होता। और आप जैसे इतने सारे लोगों के साथ मुलाकात होने का मकसद मुझे जो मिला है, बिकॉज ऑफ हिम। तो ऑल माई क्रेडिट गोज टू हिम। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी हम जो कर रहे हैं नेपाल में, रूट एंड लोकस मूवमेंट में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और लाखों लोग पाइपलाइन पे है, जो वेटिंग पे है। और जो जिस तरीके से ये रूट एंड लोकस मूवमेंट 2-3 साल में जितना इम्पैक्ट नेपाल के बाउंड्रीज पे किया, और नेपाली लोग जहां रहते हैं विदेश में वो भी किया है, इसी तरह भारत के लोग भी ऐसे मूवमेंट डिजर्व करते हैं। और उनमें क्या पता कल आप लीड करेंगे, और आपसे मिलकर हम बातें करेंगे, और हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे। तो थ्रू दिस कम्युनिकेशन सिस्टम एक नया विंडो ओपन हो सकता है। वी कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ, न्यू होराइजन, और हम सब मिलके वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, ये हमारे ही लाइफ टाइम पे। क्योंकि जितना एनर्जी वो हमको दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मैं अगर अपने जैसे कुछ लोगों के साथ जुड़ सकूं, और उनके पास जो पॉसिबिलिटीज है उसको सिर्फ कनेक्ट कर सकूं, तो आई थिंक माई लाइफ विल बी वर्थफुल। तो वो मैं अगर कर पाऊं तो मेरा लाइफ भी ये जो शरीर से मिला हुआ है वो भी प्लीज हो जाएगा। तो बस इतना ही। और आपने जो कहा कम्युनिकेशन सिस्टम, निर्मल मणि अधिकारी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भारतवर्षीय संचार सिद्धांतों में क्या प्रभाव है, उसके बारे में आपने जो सटीक और क्लैरिफिकेशन दिया, आई एम रियली प्लीज्ड, आई एम रियली थैंकफुल कि फर्स्ट टाइम हमारा जो मुलाकात हुआ है। और बस इतना ही जो मुझे कहना है। आपको कुछ कहना है तो प्लीज। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन पर बोलना मेरे बस में नहीं था, बट मैंने कोशिश की कि मैं कुछ बोलूं उनके बारे में। हाँ जी। क्योंकि 10-12 साल का जो जुड़ाव है उनके साथ, वो बहुत आत्मीय है, बहुत करीबी है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, मतलब पर्सनल भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो हर बार वो गाइड करते हैं, कुछ ना कुछ मुझे बताते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। So he's a guiding light for us, and I hope that it will continue for long, so that we can achieve our goals, which we have set for our with the target which we have set for our life. So we can achieve that, and we will surely achieve if he continue to guide us. डेफिनेटली। वो उनके Thank you very much. हाँ जी, उनके जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो करते हैं ना, हर चीज में वो है लेकिन किसी में वो नहीं है। इस तरीके से ये जो है ना सरप्राइजिंग फैक्ट है। बहुत सारे लोग जो सोसाइटी में काम करते हैं, कहीं पर उनका एक अटैचमेंट रहता है, लेकिन डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी का जो वो करते हैं, और कहीं के लेको तुम ले लो, क्रेडिट ले लो, तुम आगे बढ़ो। वो ये अभी का जो माहौल है, इसमें से आई ट्रस्ट हिम एज अ रियल गुरु, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उनकी वजह से आपसे मुलाकात हुआ, और आपकी कीमती टाइम जो रूट एंड लोगस मूवमेंट की ये जो आज की जो प्रोग्राम है, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ 2079 विक्रम संवत। तो हम विक्रम संवत की कैलेंडर के हिसाब से जिन आज उनका जन्मदिन भी है, इसमें आपने गुरु के बारे में कुछ शब्दों कहें, और उनके जो लाइफ का जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने किया, जो लोगों को हैंडओवर किया, उस पर आपने थोड़ा बातें किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रूट एंड लोकस मूवमेंट
काठमांडू की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और सहकार्य करने के लिए अगर कुछ हमारे लिए भी खिदमत करने का मौका है तो कृपया सूचित करें। हम आपसे ये बातें करेंगे, हम जो भी है आगे बढ़ती करें बातें करें। ठीक है जी बिल्कुल, हम जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सनातन धर्म लॉन्च किया है। हाँ जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे इंडिया का स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया हुआ है और आपको शायद नेपाल से अपॉइंट किया हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों लोग जुड़े हुए हैं और उस चीज को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हम मिलकर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी। लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड नॉट बाय कंपटीशन बट बाय कोलैबोरेशन। हम कोलैबोरेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी। आपकी जो वक्त है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। राइट।